السلام علیکم. آج پاکستان کی آواز کے ساتھ شہر اقتدار سے میں ہوں یاسر نظر آوان. آج ہم بات کریں گے پروگرام میں سب سے بڑے مسئلے مہنگائی کے بعد جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے انرجی کرائسس کے حوالے سے. یعنی توانائی کا بحران دن گزرنے کے ساتھ جو ہے مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. تمام سیکٹر اس سے بری طرح جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہیں گھریلو صارفین، جن کو صبح کے وقت بھی گیس میسر نہیں ہوتی، رات کے اوقات میں بھی گیس جو ہے مکمل طور پہ ان کے گھروں سے غائب ہوتی ہے. بچے اسکول نہیں جا پاتے تو بچوں کے ساتھ جو ملازمین ہیں وہ اپنے دفاتر جو ہیں بر وقت نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ نہ ناشتہ تیار ہوتا ہے، نہ کھانا تیار ہوتا ہے اور نہ ہی گھروں کے چولہے جلتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ بھی بری طرح اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. ساتھ بات کریں سی این جی سیکٹر کی، وہ تو مکمل طور پہ ہی بند ہو چکا ہے. مختلف جو ایریاز ہیں ان میں تو پہلے ہی سی این جی جو تھی آر ایل این جی خاص طور پہ پنجاب اور سندھ میں استعمال ہوتی تھی، لیکن خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو علاقے تھے وہاں سی این جی جو استعمال ہوتی تھی اب پورے پاکستان میں اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے. اب بات ہے ایل این جی کی. ایل این جی امپورٹ تو کی جا رہی ہے لیکن پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. پاکستان اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش تو کر رہا ہے، لیکن فی الحال معاملہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جو ایل این جی بھی خریدی نہیں جا سکتی تاکہ اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کی جا سکے. اب کرائسس ہے دن گزرنے کے ساتھ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ایل پی جی جو ہے 27% کے قریب جو لوگ ہیں وہ ایل پی جی بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ 27% پاکستانیوں کو گیس پائپ لائن کے ذریعے گیس جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. اب ایل پی جی بھی دن گزرنے کے ساتھ ایک تو مہنگی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور دوسرا کیونکہ 60% مقامی پیداوار ہے اور 40% بیرون ملک سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں اس کی بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور کچھ جگہوں پہ یہ ایل پی جی میسر بھی ہے اور کچھ جگہوں پہ بالکل غائب ہے. ان ساری صورتحال کا ہم جائزہ لیں گے اور بتائیں گے کہ آخرکار اس سارے بحران کی وجہ کیا ہے، دن گزرنے کے ساتھ کرائسس بڑھ کیوں رہا ہے، اور اس ساری صورتحال پہ ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے اسلام آباد سے. پہلے یہ دیکھتے ہیں. گیس پیداوار میں کمی بحران کی شکل اختیار کر گئی. اگلے 3 سالوں میں 90 لاکھ کیوبک فٹ قدرتی گیس کم ہونے کا خدشہ ہے. ملک کی یومیہ 4 بلین کیوبک فٹ گیس کی ضرورت، 2.8 بلین کیوبک فٹ ملکی ذرائع جبکہ 1.2 بلین کیوبک فٹ درآمد کی جا رہی. ملک میں 27% صارفین کو قدرتی گیس فراہم ہو رہی. مؤثر حکمت عملی کے فقدان اور تاخیر سے خریداری نے بحران کو جنم دیا. ہمارے یہاں تک جو ڈیمانڈ ونٹر کے اندر جو گیس کی ہوتی ہے 4.9 بلین کیوبک فٹ کی گیس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جس میں سے ہم لوکل جو ہماری پروڈکشن ہے انڈیجنس پروڈکشن جو ہے وہ تقریباً 3.7 بلین کیوبک فٹ کی ہے. باقی ہم ایل این جی کی شکل میں امپورٹ کر کے پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گیپ رہ جاتا ہے 300-400 ملین کیوبک فٹ کا پر ڈے کے حساب سے، اور اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تقریباً 30% جو لوکل گیس ہے 3.6 بلین کا 30% جو ہے وہ ڈومیسٹک کسٹمرز کو دیا جاتا ہے. اب سردیوں کے اندر لوگ جو ہے ہیٹر سے لاتے ہیں گھروں کے اندر، جس سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور ایک لوکل ڈیمانڈ. بعض اوقات انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جب سپلائی ڈیمانڈ کی سچویشن بدلتی ہے تو چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. 27% افراد ایل پی جی استعمال کر رہے. صنعتی شعبہ سب سے زیادہ گیس استعمال کرتا ہے. ایل پی جی کی مجموعی ضرورت 13 لاکھ میٹرک ٹن، 60% مقامی جبکہ 40% درآمد کی ضرورت سے پوری کی جاتی ہے. ایل پی جی سیکٹر قیمتیں ریگولیٹ نہ ہونے کے باعث مشکلات سے دوچار ہے. ایل پی جی پالیسی جب بنانا شروع کی 1.5 سال قبل وزارت پلاننگ نے 80 روپے کلو قیمت تھی، آج باڑوں میں 300 روپے کلو قیمت ہے. یہاں پہ پالیسی نہیں بن سکی، ہم نے پالیسی کا فقدان ہے. منی بجٹ بھی ایل پی جی پر فوری طور پر جو مراد تھی واپس لی جا رہی ہے، اس سے 15 روپے کلو ایل پی جی بڑھ سکتی ہے. ایل پی جی غریب صارفین کا فیول ہے، اس میں مراد دیج ہیں. ابھی شارٹ فال قدرتی گیس کا شارٹ فال 3 کی بلند ترین سطح کراس کر دیا، 1700 ملین کیوبک فٹ تک چلا جائے گا، اور پاکستان میں متبادل فیول صرف ایل پی جی ہے. ہمیں 3 ماہ کے لیے 4 لاکھ میٹرک ٹن کی امپورٹ کی ضرورت ہے. اگر امپورٹ بر وقت نہ آئی اور جس طرح قیمت یہ مراد ختم ہو رہی 15 روپے کلو بیٹری، تو بہت بڑا ایل پی جی میں بھی شارٹ فال آ سکتا ہے. لہٰذا فوری طور پر گورنمنٹ اس کے لیے اقدامات کرے. ملک میں سی این جی سیکٹر کی ضرورت 180 MMFCD ہے، یعنی حکومت 3.5% سی این جی صارفین کو محروم کر کے گھر کے چولہے جلانے کی کوشش کر رہی.
जी, जिस तरह आपने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में आपने देखा कि तमाम सेक्टर जिसमें घरेलू सार्फिन हो, इसके साथ साथ LNG सेक्टर हो, LPG सेक्टर हो, CNG सेक्टर हो, तमाम ही एक मुश्किल सूरत-हाल से गुजर रहे हैं और दिन गुजरने के साथ इनकी जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। खास तौर पे LPG सेक्टर ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर इसको रेगुलेट ना किया गया तो कीमतें जो हैं दही इलाकों में 100% तक बढ़ सकती हैं और इसके साथ साथ घरेलू सार्फिन जो हैं वो पहले से ही मुश्किलात में फंसे हैं। CNG सेक्टर रिपोर्ट में आपने देखा कि मुकम्मल तौर पे इस पोजीशन में है कि अब उनका बिजनेस जो है बुरी तरह इफेक्ट होकर बंद हो चुका है। इसके साथ साथ जो आम लोग जिनका बुनियादी मसला खाने पीने की अशिया के बाद गैस का है, क्योंकि अगर शहर इक़्तिदार हो या पाकिस्तान का कोई भी शहरी इलाका जहां पे गैस इस्तेमाल होती है, अगर वहां गैस बंद कर दी जाए तो मुमकिन नहीं है कि वहां खाने तैयार हो सके, वहां का सिस्टम चल सके। शहरी इलाके यहाँ इस्लामाबाद में तो लकड़ी जलाना इस पे भी पाबंदी है। तो इसके साथ साथ जो घरेलू सार्फिन है इनकी जो मुश्किलात हैं गैस न होने के बायस दिन गुजरने के साथ मजीद बढ़ती ही जा रही है। शहरी परेशान है कि आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है, हुकूमती पॉलिसियां हैं क्या, हुकूमती पॉलिसियों के जो अच्छे असरात हैं वो कब आना शुरू होंगे, अवाम के मसाइल खास तौर पे जो घरों में गैस के हवाले से ये कब हल होंगे। इसी हवाले से शहर इक़्तिदार के जो बासी हैं इनसे मैंने तफसीली तौर पे बात की है, इनका क्या कहना था आइए आपको भी सुनवाते हैं। हर बंदे को सिर्फ गैस के वजह से, नाश्ते के वजह से, रोटी की वजह से सारा दिन मुश्किल पेश आते। बच्चा टाइम से स्कूल नहीं जा सकते, बंदे को खाना वक्त पे नहीं मिलता, वो दफ्तर नहीं पहुंच सकते, शाम को जब आ जाते तकड़ टूटा, उसके पास और क्या जरिए, फिर उसको वो चीज नहीं मिलते। तो इस हमारा मुश्किलात वो भी है, हम ज़हनी तौर पर बिल्कुल मखलूज होके रह गया। और ये आज का मामला नहीं है, ये हम कोई 20-25 साल से सुन रहे। हर हुकूमत जब आते इसी बुनियाद पर आते कि भाई मैं आपके लिए बेहतरी लाऊंगा। तो महंगाई तो है ही उरूज पर, तो एक अलग सिस्टम है। अब अगर हमारा घर में नहीं है तो मार्केट में गरीब आदमी, मजदूर आदमी जिसका 10,000 15,000 तनख्वाह है, ये महंगा बिल, वो 20 रुपए रोटी कहाँ से खरीद सकते। और वो तंदूर वाला के पास भी बंदोबस्त नहीं है, लेन लगा हुआ है। बहुत मुश्किल है जी। LNG भी लेने जाते हैं, उधर भी लाइनें लगी होती हैं और महंगी भी है। तो अब तो सुबह दोपहर शाम वाली बात है कि सुबह दोपहर शाम कहते हैं मिलेगी, अब वो गोली अब हमें कब मिलेगी हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि गैस घरों में नहीं आ रही। जिस तरह शहर इक़्तिदार के बासियों की परेशानी तो आपने सुनी, कहते हैं घरों में गैस नहीं, घरों में गैस नहीं होगी तो घरों के चूल्हे ठंडे हैं, चूल्हे ठंडे होंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मुलाजमीन जो हैं दफातर नहीं पहुंच सकते और कोई भी जिंदगी का सिस्टम चलाना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। और यही सूरत-हाल दीगर शहरों में भी है। वफाकी दारुल-हुकूमत में तो गैस का बुरान जो है सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ बढ़ता ही जा रहा है, लोगों के मसाइल जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत की तरफ से भी सिर्फ जो लोगों का यही कहना था, जिस तरह मैंने इनसे बात की तो हुकूमत सिर्फ तसल्लियां दे रही है कि ये मामला हल हो जाएगा, जल्दी हल हो जाएगा। लोगों का ये भी बात करते हुए कहना था कि माजी में भी हुकूमतें जो हैं ऐसे ही तसल्लियां देती रही, लेकिन अब जो सूरत-हाल है, माजी में कभी ऐसी सूरत-हाल से हमें गुजरना नहीं पड़ा, लेकिन अब जो सूरत-हाल है इसमें तो जिंदगी गुजारना जो है वो भी मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि लकड़ियां नहीं जल सकती, गैस मुयस्सर नहीं है, गैस मुयस्सर नहीं है तो जिंदगी का जो चूल्हा है वो कैसे जले। जिंदगी के जो निजाम में जिंदगी है वो वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और दीगर शहरों में कैसे चले। प्रोग्राम में हम इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। लेते हैं यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद जो क्राइसिस तवानाई के हवाले से है उस हवाले से मजीद लोगों से जो है वो भी बात करेंगे और बताएंगे कि दीगर शहरों में क्या सूरत-हाल है और क्राइसिस की वजह से लोगों को किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा शामिल करेंगे मजीद इस हवाले से जो है अपडेट। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ शहर इक़्तिदार से दोबारा आपको कहते हैं खुशामदीद। बात कर रहे थे हम गैस क्राइसिस के हवाले से। घरों में गैस न हो तो वाहिद हाल ये होता है कि लकड़ी जला के जो घरों के चूल्हे हैं उनको ठंडा होने से बचाया जाए। शहर इक़्तिदार में तो लकड़ी जलाने पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है और इसके साथ साथ जो दूसरा हल होता है LPG का इस्तेमाल। LPG भी अगर मुयस्सर न हो तो फिर तो घरों के चूल्हे चलाना मुमकिन ही नहीं रहता। एक तो LPG की कीमतें दिन गुजरने के साथ मजीद बढ़ती ही जा रही हैं। सर्दी की शिद्दत जब से बढ़ी है, घरेलू गैस की जो कीमत है उसमें भी मुसलसल इजाफा जो है वो होता जा रहा है। एक तो जितनी भी एजेंसीज है जहां पे ये मुयस्सर होती है
वहां उनको खुद समझ नहीं आ रही कि रोज कीमतें बढ़ने का ये हल क्या तलाश करें। सारिफीन जब उनके पास आते हैं गैस खरीदने के लिए, कीमतें इतनी ज्यादा होती हैं कि रोजाना एक झगड़े जो है वो भी मामूल बनता जा रहा है। ऐसे में जो गैस की कीमतें हैं इनको रेगुलेट भी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से एलपीजी की कीमतें जो हैं वो हर कोई अपने हिसाब से शहरी इलाकों में मुख्तलिफ, देही इलाकों में जो है मुख्तलिफ है। इसकी वजह से जो सारिफीन हैं उनको खासी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। इसकी वजह से न सिर्फ जो आम सारिफ है, घरों में इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो मसाइल से दो चार हैं, बल्कि जो बेचने वाले लोग हैं जिनके पास सिलेंडर मौजूद होते हैं वो भी रोज बदलती कीमतों और गैस अक्सर औकात जो मेन एजेंसीज होती हैं वहां पे मुयस्सर ना हो तो वो लोगों को सप्लाई भी नहीं कर सकते। इनके किस तरह के मसाइल है, शहरियों को किन मसाइल से गुजरना पड़ रहा है, इसी हवाले से इस्लामाबाद से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। गैस नहीं दस्तयाब, मुतबादल के इंतजाम, एलपीजी भी महंगी। कुदरती गैस नायाब होने पर शहरी एलपीजी को मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2500 रुपए तक है। घरों के चूल्हे अब महंगी एलपीजी से चलाए जा रहे हैं। सारिफीन गैस की किल्लत ही नहीं बल्कि होशरुबा महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। एलपीजी गैस भी बहुत महंगी है सर, क्योंकि घरों में तो है नहीं है ना, तो वो भी लेने जाते हैं तो वो महंगी भी मिलती है और वो उसका मतलब है शार्ट भी है। गैस भी बहुत महंगी मिल रही है और जब भी लेने जाते हैं कहते हैं लोड शेडिंग है, गैस नहीं मिली, ये प्रॉब्लम है। 100 मामला इधर जब भी जाते हैं ना रश लगा होता है, गैस नहीं मिलती। होटल मालिकान भी मौजूदा सूरत हाल से परेशान है। आवाम जब होटलों की तरफ रुख करती है तो होटल में भी गैस नहीं होती है, तो इस हवाले से जो है परेशानी होती है। और लकड़ियां भी यहाँ तो आप यूज नहीं कर सकते। सिलेंडर ये आपके सामने पड़ा है, ये 12 किलो का सिलेंडर है, 3200 रुपए का ये। एलपीजी डीलर्स का मानना है कि नुकसान में नहीं बेच सकते, जिस कीमत पर दस्तयाब होगी उसी पर फरोख्त मुमकिन है। मुश्किल तो यही है कि जब प्लांट पे जाते हैं तो बस डेली रेट बड़ा होता है, ज़ाहिर फिर महंगी मिलेगी तो हम भी महंगी बेचेंगे। घरेलू सारिफीन और होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद हुकूमत से गैस की किल्लत ही नहीं बल्कि एलपीजी की कीमतों में कमी का मुतालबा भी कर रहे हैं। जिस तरह इस रिपोर्ट में आपने लोगों के मसाइल सुने कि एलपीजी एक तो मुयस्सर नहीं, मुयस्सर है तो इंतहाई महंगी, डिस्ट्रीब्यूटर अपने तौर पे परेशान है और लोग अपने तौर पे कीमतें बढ़ने का शिकवा कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेट करने वाला इदारा नहीं है, जिसकी जहां जो मर्जी है उस कीमत पे जो एलपीजी गैस है वो फरोख्त कर रहा है। फरोख्त करना तो जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये चीज मुयस्सर ही ना हो, गैस ही ना हो, एलपीजी आपको मिले ही ना, तो ये सबसे बड़ा मसला दरपेश है शहर इक़्तिदार के बासियों को भी। यहाँ पे भी अक्सर गैस मिलती है, कभी मिलती है तो इंतहाई महंगी, ना मिले तो बहुत सारी जगहों से शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों के चूल्हे, एक तो गैस बंद होने की वजह से जो घरेलू सारिफीन के चूल्हे जो है वो ठंडे होते हैं, दूसरा एलपीजी मुयस्सर ना हो तो मसाइल जो है दुगना हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। माजी की सूरत हाल कैसी थी, माजी की हुकूमतों ने क्या किया, माजी के अदवार में जो लोग थे उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी। 80 साल के बुजुर्ग जिनसे मैंने बात की है उनका क्या कहना था, उन्होंने ये भी कहा कि अब लकड़ी का दौर जो है वो वापस आ रहा है, और इसके साथ साथ उन्होंने क्राइसिस का जिक्र किया कि माजी में उन्होंने इससे अब तक जो सूरत हाल है वो उन्होंने कभी नहीं देखी, और ये दिन गुजरने के साथ वो कह रहे हैं कि जो जो उनकी जिंदगी के साल आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्राइसिस जो है इन 3 सालों में तो हद ही हुबूर कर गया और तमाम हदें जो है वो क्रॉस करता दिखाई दिया है। अब इन बुजुर्गों का इस हवाले से क्या कहना था, आइए दिलचस्प गुफ्तगू जो है आपको भी दिखाते हैं। आजकल जो गैस का प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से लोग बहुत ही तंगी और मतलब बहुत अज़ियत महसूस कर रहे हैं, और ये हमारी जिंदगी में पहले कभी हमने ऐसा नहीं देखा। और यहाँ पर इस मामले में यही कह सकते हैं कि हुकूमत तो चाहिए कि ये लोगों का ख्याल करें, गरीब पिस रहा है। वैसे भी माजी में जो बुरहान थे ना वो शॉर्ट टाइम थे, ये तो मुसलसल अज़ियत है, ये तो मुसलसल अज़ियत हम बर्दाश्त कर रहे हैं ना। माजी में होता था लेकिन इस तरह नहीं होता था, इतना नहीं था। आज तो बिल्कुल चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, न गैस है, गरीब आदमी है, न होटल से खर्चा कहाँ से बर्दाश्त करे, जरूरियात कहाँ से पूरी करेगा, ये मामलात है। तो मुल्क में इनकलाब भी खतरनाक आ सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपने कभी ऐसी मुश्किल हालात, मुश्किल वक्त देखा? कभी ऐसा मुश्किल वक्त मैंने तो जिंदगी में कम नहीं देखा, ये पहली दफा ऐसा हुआ है। लोग इंतहाई परेशान है, खाने पीने की चीजें महंगी हैं, हर शय महंगी है। सही
पेट्रोल महंगा हो जाए तो हर चीज महंगी हो जाती है। बिजली पहले लकड़ियां जलाते थे, गैस नहीं होती थी, उस वक्त वो कहा करता था ना, वो बुश ने कहा था कि मैं तुम्हें पत्थर के जमाने में भेज दूंगा, तो वो तो भेजेगा इन्होंने हमें पत्थर के जमाने में भेज दिया बस पड़ोसी ने। तो देखो अल्लाह पाक मेहरबानी करे। कोई ये आए थे किस दावे के साथ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले लोग करप्ट थे खा गए, अब ये क्या कर रहे हैं? ये भी उसी तरह के जैसे वो थे। कम अज कम ये थे कि पहली जो हुकूमतें थी वो कीमतों को एक हाथ से आगे नहीं बढ़ने देती थी, वो लोगों से वोट लेने होते थे ना, इसी वो लोगों आवाम का ख्याल रखते थे, कीमतों को ज्यादा नहीं बढ़ने देते थे। इनको परवाह किसी चीज की नहीं है। तो पत्थर का वापस जमाना वापस आ गया तकरीबन, नहीं आया तो आ जाएगा इनकी। अगर यही इनके सामूहिक चल रहे ना, हाँ लचन रहे तो वो आपने देखे अपनी जिंदगी में? कभी नहीं देखे हमने ऐसे मुश्किल हालात कभी। गुर्बत तो गलत बात है ना, गुर्बत तो थी लेकिन ऐसे मुश्किल हालात कभी नहीं थे। जी, जिस तरह दिलचस्प गुफ्तगू आपने जो बुजुर्गों की सुनी, बुजुर्गों का यही कहना था कि माजी में उन्होंने ऐसी अबतर सूरत-ए-हाल जो है वो कभी नहीं देखी। पहले तो एक वक्त इनका ये कहना था कि लकड़ियां होती थी, कोयले जलाते थे, लोग अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल है इसमें गुजर बसर तो हो रहा है लेकिन इंतहाई मुश्किल। और खास तौर पे इन्होंने जिक्र किया इन 3 सालों का। 3 सालों में इनका ये कहना था कि माजी में इनकी तकरीबन 80 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है, ऐसे हालात जो हैं वो इन्होंने नहीं देखे। और खास तौर पे घरों में गैस मुयस्सर हो लेकिन इतनी महंगी हो कि लोग अफोर्ड न कर पाए, तो ये जिंदगी गुजारना ऐसे में मुमकिन ही नहीं रहता। और इंतहाई मुश्किल सूरत-ए-हाल ये कह रहे हैं कि इन 3 सालों में इन्होंने देखी है। माजी के तजर्बात की रोशनी में इन्होंने ये बताया कि माजी की जितनी हुकूमतें गुजरी हैं उनमें क्राइसिस जरूर थे लेकिन इस हद तक नहीं थे कि लोग जो अपनी जिंदगी का गुजर बसर जो है वो भी ना कर सकें। तो ये इंतहाई अबतर सूरत-ए-हाल है, मुश्किल तरीन सूरत-ए-हाल है। आगे चल के ये सूरत-ए-हाल मजीद खराब होनी है, लोगों के मसाइल मजीद बढ़ने हैं, तवानाई सेक्टर में क्राइसिस जो है मजीद बढ़ने हैं, सर्दी की शिदत बढ़नी है। तो इस चीजों का लोड जो है हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं, हुकूमत किस तरह इन सारी चीजों को मैनेज करेगी, ये एक सवालिया निशानी है अभी। और लोगों के मसाइल जो हैं वो किसी सूरत भी कम होते दिखाई नहीं देते। तवक्को भी नहीं की जा सकती कि फिलहाल LNG आए या कोई और चीज हुकूमत कर ले जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो है आगे चल के अब दिसंबर और जो जनवरी का महीना है इसमें कम हो सके। वक्त गुजरने के साथ मसाइल तो बढ़ते जा रहे हैं, हुकूमत क्या करेगी या हुकूमत को देखना होगा। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आज पाकिस्तान की आवाज शहर इक्तदार से। प्रोग्राम में लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद इस हवाले से मजीद गुफ्तगू जो है वो जारी रखेंगे। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ दोबारा शहर इक्तदार से आपको कहते हैं खुशआमदीद। बात कर रहे थे हम तवानाई के बुरान के हवाले से। जिस तरह बुजुर्गों की गुफ्तगू आपने सुनी, मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है कितने ज्यादा, किस तरह के बंवर में लोग फंसे हैं, मसाइल कैसे हैं, ये सारी चीजें आपने जानी। अब बात करते हैं लोगों से कि लोगों ने किस तरह की जो सूरत-ए-हाल है देखी है, किस तरह की सूरत-ए-हाल से ये गुजर रहे हैं और आगे की इनकी क्या तवक्कुआत हैं। शहर इक्तदार में भी क्राइसिस जो है दिन गुजरने के साथ बढ़ता ही जा रहा है, मसाइल हैं किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहे। शहर इक्तदार में घरेलू सार्फिन किस तरह के मसाइल में वो फंसे हैं, इसी हवाले से शहर इक्तदार से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। सर्दी से छिड़कती आवाम सुबह दोपहर और शाम गैस का रहता है बहरान, शहर इक्तदार के बासी भी परेशान। हुकूमत दावा कर रही है कि मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन अव्वलीन तरजीह है। नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मर्तबा हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया। वजीर जहां ये बयान दे रहे हैं वहीं से कुछ फासले पर रिहायशी आबादी ही इनके शिकवे कर रही है। मसाइल योमिया बुनियादों पर सर उठा रहे तो हुक्मरान हर मुश्किल का हल मुख्तलिफ तौजीहात से दे रहे हैं। इतनी उम्र में मैंने इतना बुरहान कभी भी नहीं देखा, बचपन से लेके आज तक। जब से ये हुकूमत आई है तब से कोई न कोई मसले चल रहे हैं। खाने पीने का मसला, महंगाई देखें किधर जा रही है। ठीक है, अब 18-19 हजार रुपया जो बंदा तनख्वाह लेता है किस तरह गुजारा करता है। ठीक है जी, होटल पे चले जाएं सुबह जनाब नाश्ते के लिए, जब बच्चे जाते हैं स्कूल जाते हैं तो यकीन करें कि इतना मसला होता है, इतनी परेशानी होती है। परेशानी क्या मतलब, दुख होता है, रोना आ जाता है कि यार हम बच्चों के किस तरह भेज रहे हैं। ठीक है जी,
कोई पानी में जनाब रस वगैरह डबरोटी वगैरह जनाब हो उनको खिला के भेज रहे हैं, या सूखी डबरोटी दे के तो जनाब उनको गुजारा कर रहे हैं। जब से ये हुकूमत है, नालायक तरीन हुकूमत, इनके वजीर नालायक, इनका जो वजीर आज़म है वो नालायक, हमारी तो मतलब है इसने मत ही मार दी ना। गरीब लोग तो मर गए हैं, जो उससे श्वेतपोशों से ऊपर थे उनका भी हाल बुरा है आजकल। तो गैस यास की तो सोचे भी ना, आगे पता नहीं क्या होगा, खाने के लिए भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गैस बंदिश के भंवर फंसी आवाम जुबानी हुकूमत के जबानी जमा खर्च को आड़े हाथों ले रही है। LPG भी इतनी महंगी हो, गैस भी न मिलता हो, इतना महंगाई भी हो, क्योंकि आजकल जो है ना चीनी दाल ये सब वो तो उसका महंगाई तो पहले से, गैस बंद है और हुकूमत के गलत पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि हुकूमत ने अगर पहले जो समझौता किया होता अगर वो होता तो ये हालात न देखना पड़ता। हुकूमत या उसका तो नाम निशानी नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत है भी कि नहीं है। अवाम परेशान है कि अभी तो मौसम सरमा ने शिद्दत इख्तियार नहीं की, बारिश और सर्दी में इजाफे से चूल्हे मुकम्मल बंद हो जाएंगे। जी, जिस तरह आपने रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि लोग जो हैं बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं कि एक तो घरों में गैस मुयस्सर नहीं, होटलों पे गैस मुयस्सर नहीं, होटल मालकान जो हैं वो अपने परेशान हैं, घरेलू सार्फिन जो हैं वो अपने परेशान हैं और परेशानी जो है दिन गुजरने के साथ मजीद बढ़ती जा रही है। लोग जब घरों पे गैस नहीं होती तो रुख करते हैं होटल का, तंदूरों का, वहां से रोटी लाएं, होटल से रोटी लाएं, लेकिन वहां पे भी LPG इतनी महंगी है कि वो उसको इस्तेमाल करना अब उनके लिए भी मुमकिन नहीं रहा, बल्कि इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। ये एक तो महंगी, दूसरा मुयस्सर न होना, ये भी एक बड़ा मसला है। और आगे चल के LPG डिस्ट्रीब्यूटर या जो दीगर कह रहे हैं कि ये मसला मजीद गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार करना है। तो अब दीगर शहरों में सूरत-ए-हाल है क्या, वहां का रुख करते हैं और अपने नुमाइंदे जो हैं उनसे पूछते हैं कि शहर इक़्तिदार की तरह वहां किस तरह के क्राइसिस हैं, क्या वहां गैस मुयस्सर है या इसी तरह की सूरत-ए-हाल से लोगों को गुजरना पड़ता है। सबसे पहले रुख करते हैं जेलम का, जहां पे जो हमारे आज टीवी के नुमाइंदे शहबाज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा वहां पे सूरत-ए-हाल है क्या, एनर्जी क्राइसिस की वजह से लोगों को किन मसाइल से गुजरना पड़ रहा है, और घरों में और जो बाजारों में जो होटल्स हैं वहां पे क्या गैस मुयस्सर है कि नहीं। ओवरऑल हमें सूरत-ए-हाल से वहां की आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दूसरे शहरों की तरह जेलम में भी सुई गैस की गैर लानिया, लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सिलसिला जारी है, और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे ही इसके दुरानिये में भी इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में घरेलू सार्फिन हो, कारोबारी हजरात हो, होटलिंग का कारोबार करने वाले अफराद हो, तंदूर मालकान हो, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसन सुबह के औकात में जब बच्चे तालीमी अदारों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं तो सुई गैस की लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से नाश्ते के बगैर बच्चों को मजबूरन जो है वो तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है। तो शहरी जो है वो शदीद अजियत से दो चार है। उन्होंने मुतालबा की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि नोटिस लेकर जो सुई गैस की गैर लानिया लोड शेडिंग है और कम प्रेशर का सिलसिला है उसको खत्म करवाया जाए। जी यासर जी, बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने हमें जेलम की सूरत-ए-हाल से आगाह किया। वहां पे भी ऐसी सूरत-ए-हाल है, एनर्जी क्राइसिस है, घरों में गैस नहीं, CNG सिलेंडर जो है वो भी मुयस्सर हैं लेकिन इंतहाई महंगे, लोग इंतहाई मुश्किल और अबतर सूरत-ए-हाल से गुजर रहे हैं। और क्राइसिस जो है इसमें दिन गुजरने के साथ शहर इक़्तिदार की तरह, दीगर शहरों की तरह जेलम में भी इजाफा होता जा रहा है। अब कुछ रुख करते हैं कश्मीर का। कश्मीर में सूरत-ए-हाल है क्या, क्योंकि वहां पे घरेलू गैस जो है पाइपलाइन के जरिए तो नहीं लेकिन LPG गैस जो है वो सार्फिन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहां पे LPG का इस्तेमाल होता है क्योंकि दई इलाके हैं, इनसे मुंसलिक मुजफ्फराबाद और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में सूरत-ए-हाल क्या है, वहां पे क्या गैस LPG सिलेंडर मुयस्सर हैं कि नहीं, उन लोगों को क्या शॉर्टेज का मसला तो नहीं है या क्राइसिस वहां पे है क्या। मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं, वहां आज टीवी के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इम्तियाज अवान से जानते हैं कि वहां सूरत-ए-हाल है क्या। इम्तियाज, जरा तफसीलात से आगाह करें, LPG क्या वहां मौजूद है, लोगों को, सार्फिन को किस तरह की मुश्किलात वहां दरपेश हैं, और ये भी बताएं कि सस्ती LPG मिल रही है, महंगी मिल रही है, कीमतों का भी जरा बता दें अगर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद के एक जो है वो LPG गैस के डिस्ट्रीब्यूटर के दुकान के सामने। हम अंदर जाके इनसे ये मालूम करते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। इमरान खान ने महंगा कर दिया सारा कुछ,
ٹھیک ہے، اور وہ بیچارے صرف ریٹ پوچھ کے ہی چلے جاتے ہیں، گیس نہیں لیتے. نہ صرف شہری پریشان ہے گیس کی قیمتوں کی بڑھوتری کے باعث ہے، بلکہ یہاں کے جو گیس کا کاروبار کرنے والے جو دکاندار ہیں، جو یہاں پہ ڈسٹریبیوٹر ہیں اور سب ڈسٹریبیوٹر ہیں، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہیں. جی بہت شکریہ امتیاز اوان، آپ نے ہمیں کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح جو طلب بڑھنے کی وجہ سے جو ایک رسد اور اس چیزوں میں فرق آ رہا ہے اور کیا مجموعی صورتحال ہے مظفر آباد، آزاد کشمیر اور ارد گرد کے ایریاز کی. بہت شکریہ امتیاز اوان ہمیں تفصیلات جو ہیں اس سے آگاہ کرنے کا. کیونکہ آپ نے ساری صورتحال دیکھی، ہم نے تقریباً جو تمام سیکٹر اس سے منسلک ہیں، چاہے LNG ہو، LPG ہو یا CNG سیکٹر ہو، گھریلو صارفین ہو یا جو بھی اس سے منسلک لوگ ہوں، ان کی آراء بھی ہم نے آپ کو سنائی، ان کے مسائل بھی آپ کو بتائے اور یہ بھی بتایا کہ حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے. اور حکومتی اقدامات فی الحال ہمیں یہی نظر آتے ہیں کہ حکومت عوام کو تسلیاں دے رہی ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اتنا بڑا کرائسس نہیں ہے، کرائسس کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں، حکومتی وزراء جو ہیں وہ اپنے دعوے کر رہے ہیں، لیکن عوام کے جو مسائل ہیں جوں کے تو ہیں. گھروں میں گیس میسر نہیں، اور خاص طور پہ اب حکومت کیونکہ LNG جو امپورٹ کر نہیں سکتی، امپورٹ کرنے کی اب ممکنات میں نہیں رہی کہ وہ اب امپورٹ کرے اور جو ٹرمینل ہے اس پہ لائے اور اس کے بعد جو عوام تک یا جو انڈسٹری سیکٹر ہے اس کو یہ پہنچا سکے. فی الحال یہ LNG کی امپورٹ مزید جو لانا، نیا آرڈر کرنا اور آن سپاٹ جو ہے وہ پرچیز کرنا، یہ بھی اب ممکن نہیں رہا. فی الحال حل یہی ہے کہ ملک کے اندر جو گیس موجود ہے اس کو گیس لوڈ مینجمنٹ پلان جو ہے اس کے تحت کس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کس طرح نظام چلانا ہے، یہی ایک واحد حل ہونا ہے. اور اس میں حکومت کو اس چیز کو بھی اگر مد نظر رکھے کہ اگر جو انڈسٹری سیکٹر ہے، خاص طور پہ جو بیرون ملک ہم اشیاء تیار کر کے بیچتے ہیں، اگر ان کو بند کرتی ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑے کرائسس سے کم نہ ہوگا. لیکن سب سے بنیادی ترجیح جو حکومت کی ہونی چاہیے وہ ہے عام صارفین، اور عام صارفین کو اگر گیس میسر نہیں آئے گی تو یہ عوام کے لیے ایک انتہائی اب تک صورتحال جس سے ابھی عوام گزر رہے ہیں، مزید آگے چل کے جو جنوری کا مہینہ ہے اور دسمبر کا یہ جو مہینہ ہے اس میں یہ مسائل مزید بڑھنے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس حوالے سے کیا حکمت عملی طے کرتی ہے، کس طرح اس ساری چیز کو لے کے آگے چلتی ہے اور عوامی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں حکومت کے ساتھ تک کامیاب ہوتی ہے، یا جو تسلیاں ہیں سابقہ 3 سالوں کی طرح، گزشتہ 3 سالوں کی طرح جس طرح حکومت تسلیاں دیتی رہی ہے، کیا اس بار بھی حکومت جو 2 سے 3 مہینے سردی کے ہیں اسی طرح لوگوں کو تسلیاں دینے میں گزار دے گی. یہ حکومتی وزراء نے اب فیصلہ بھی کرنا ہے اور وزیراعظم عمران خان کی طرف تمام لوگوں کی نظریں ہیں، حکومت پہ نظریں ہیں کہ اب عوام کا جو فیصلہ ہے، اب عوام کے جو مسائل ہیں حل کرنے کے لیے دعووں کے بجائے عملی اقدامات کیے جائیں. پروگرام آج سن رہے تھے شہر اقتدار سے آج پاکستان کی آواز. اپنے میزبان یاسر نظر کو پوری ٹیم کے ہمراہ دیجیے گا اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ حافظ.